That's the irony. Screenplay still is it's easier because you can write in English or some like if you have grammatical mistake, it's okay. But dialogue is the what the your actor will say in the final in his final act. So ये এটা যে হচ্ছে চারটে মেনলি जो है তিনটে চারটে পার্টে যে আমরা যে হচ্ছে স্ক্রিপ্ট রাইটিং কে ডিভাইড করি স্টোরি मतलब बेसिकली एक आइडिया देन स्टोरी देन स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग এই সব মিলিয়ে হয় কমপ্লিট স্ক্রিপ্ট যেটা হয় ওই অ্যান্ড আলটিমেটলি স্ক্রিপ্ট ইজ দ্য হিরো আর এখন যে আছে এখন আবার সময় আসছে বিকজ অফ ওয়েব সিরিজ অ্যান্ড even for short film if you see that short film is even worldwide short film এখন যে আছে লোকেদের কাছে সময় কম আছে অনেকে ফরেন কান্ট্রিজে আছে যারা লোকেরা ট্রাভেলিং করে ট্রেনে যাচ্ছে মেট্রো ট্রেনে ট্রাভেল করে তো হয়তো যাদের যে ট্রাভেল ডিস্টেন্স হচ্ছে 40 মিনিটস 35 মিনিটস একটা 40 মিনিটসের ওরা যে আছে ওখানে কাজের থেকে বাড়ি যেতে যেতে ওরা একটা 45 মিনিটসের ছবি দেখে মোবাইলে তো এইভাবে যাচ্ছে বা একটা যে আছে শর্ট ফিল্ম বানানো হলো শর্ট ফিল্ম ইজ अगेन শর্ট ফিল্ম ওয়াই ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট বিকজ ইউ হ্যাভ টু ইটস লাইক অ্যাড ফিল্ম একটা বড় কথাকে একটা বড় এটাকে কত কম শব্দের মধ্যে কত কম ইসের মধ্যে আর উইথ ইফ ইউ ক্যান গিভ ইট টুইস্ট এট দ্য এন্ড নাথিং লাইক ইট সো মানে সো শর্ট ফিল্ম এখন যে আছে অনেক জায়গায় যে আছে শর্ট ফিল্মের যে আছে এখান থেকে ইফ ইউ গো টু কান ফেস্টিভ্যাল অর এনি ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল দেয়ার ইজ শর্ট ফিল্মের যে আছে একটা গ্র্যাজুয়ালি যে আছে ডিমান্ড হচ্ছে কারণ লোকেদের কাছে এই যে মোবাইল এসছে এইসবে যে আছে এইসব মিডিয়ামে लोगों का और जो धैर्य था ना अगर अगर आप लोग भी देखेंगे कि जब आप यूट्यूब में देखते हैं तो आप जैसे देखते हैं भैया कितना ड्यूरेशन है अगर आपने देखा कि वो 1 घंटे का है तो आप अवॉइड करेंगे अगर आप बोलेंगे 5 मिनट का है ना तो आप बोले चलो यार देख लेते हैं तो आज का वो समय है जहां पर हमें हम लोग प्रेफर करते हैं कि कम समय में क्या देख सकते हैं तो मुझे जैसे दादा ने बताया कि आप लोग जो है बहुत सारे वहाँ पे त्रिपुरा में शॉर्ट फिल्म का क्रेज है और डेफिनेटली शॉर्ट फिल्म सिर्फ त्रिपुरा में नहीं अभी हर जगह जो है वो आप एक तरह से अपना काम को दिखाने के लिए शॉर्ट फिल्म जो है वो बहुत आसान है एक शॉर्ट फिल्म से आप कम खर्चे में कम टाइम में आप कोई देख के बोल सकते हैं अच्छा ये लड़का काम कर सकता है इस लड़के में पोटेंशियल है ये लड़का सोचता कैसा है तो ये या लड़का लड़की जो भी पड़ेगा तो ये जो এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কি আপনারা যে মানে ইন মিনিমাম ওয়ার্ডস লাইক ইন অ্যাডভার্টাইজিং আমরা দেখি একটা 10 সেকেন্ডের মধ্যে যে আছে ওই কাহিনীটা অ্যাড ফিল্মে বলে দেওয়া হয় আজকাল রেডিওতে আপনাদের ওখানে আসে কি না 1.5 মিনিট লাভ স্টোরি 1.5 মিনিটের মধ্যে একটা লাভ স্টোরি হয়ে যায় है ना तो আজকের যে সময় যাচ্ছে না খুব ইনস্ট্যান্ট সোশ্যাল মিডিয়া ইন টুডেজ টাইম আমাদের রোম্যান্স খুব তাড়াতাড়ি হয় আমাদের ব্রেকআপ খুব তাড়াতাড়ি হয় আমাদের লাইফ যে আছে এত ফাস্ট হয়ে গেছে কি দিস থিংস আর ইটস ভেরি ইনস্ট্যান্ট তো ইমোশনস আর অলওয়েজ কনস্ট্যান্ট লাইক আজ থেকে 1000 বছর আগেও যে আমরা যেমন ভাবতাম আজও আমরা সেরকমই ভাবছি আর আগেও যতদিন হিউম্যান রেস থাকবে ওরকমই ভাববে কারণ হিউম্যান এক্সিস্টেন্স যে আছে ওর is entirely dependent on emotion তো আমাদের ইমোশন যে আছে ওই ইমোশন ছাড়া আমরা কোনোদিন humans cannot survive otherwise it will be a very mechanical thing मतलब every creature has some emotion but humans আমরা এই জন্য যে সব থেকে আগে বেরিয়েছি লোকেরা আলাদা আলাদা কারণ বলে কেউ বলে আমরা দু পায়ে হাঁটতে পারতাম ওই জন্য আমরা কমিউনিকেট করতে পারতাম ওই জন্য আমরা কিন্তু আমার মনে হয় আমাদের যে এই সব যে আছে সবচেয়ে পিছনে হচ্ছে যে আমাদের যে ইমোশন যে আছে हमारे इमोशन एक्सट्रीम है तो भी हमारे भावनाओं के कारण हमारे जो जज्बात है हमारे जो इमोशन है वो हमें जो हमारे अंदर ईर्ष्या प्रेम क्रोध इनको बढ़ाता है और इनको हमें कहीं ना कहीं हमें इन चीज़ों को जब नियंत्रण करना भी आता है जब हमें पता है कि इन चीज़ों को कैसे नियंत्रण करना है इन भावनाओं को तो हम सफल होते हैं तो ये हमारे सफलता का एक मुझे लगता है बड़ा कारण है मानव जाति के जो है सफलता के पीछे कि हमारे इमोशन और जो राइटर होता है उसको पता हुआ इमोशंस का जादूगर होता है इमोशन का खिलाड़ी होता है अगर राइटर बीच में रुक रहा हूँ बीच में हमारे साथ अभी जुड़े हैं प्रोफेसर अजय मालकानी जी को बहुत बहुत नमस्कार सर हाँ नमस्कार नमस्कार अजय जी हाँ नमस्कार लामा कैसे हैं आकाश जी सर जी 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 चलते हैं मैं अभी मैं सडन देखा कि
जी चलिए चलिए जी चलिए शुरू जी करिए। बहुत जी अच्छा सर। लग रहा है देखकर आपको, जी सर, बहुत थैंक यू दिनों सर, बाद। थैंक यू। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो प्लीज प्लीज। हम लोग जो क्रिएटिव लोग होते हैं, लेखक, निर्देशक, हम लोग जो है, हम उस इमोशंस को महसूस करते हैं अपने कहीं ना कहीं, और हमें जो है उस इमोशंस को दूसरों तक पहुंचाना आता है। और जब अगर आप एक अच्छे कमर्शियल राइटर या अच्छे सफल राइटर तब हो जाते हैं जब आपको पता है कि आप जो महसूस कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, वो आप दूसरे तक कितने अच्छे से पहुंचा सकते हैं। ये ये जो है, ये इमोशन, ये कुछ ये जो प्रैक्टिस से आती है। ये चीज़ें कुछ जो है, ये आपको ऐसा नहीं आएगा कि रातों रात आप आ जाएगा। अच्छे लेखकों को पढ़िए, अच्छे नाटक पढ़िए, अच्छे नाटक कीजिए। अगर जो जितने भी लोग सिनेमा में आना चाहते हैं, मैं उनसे हमेशा कहता हूँ कि अगर आपके पास वो संसाधन नहीं है, अगर आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं है कि आप किसी बड़े फिल्म स्कूल में जाए न्यूयॉर्क में, या आप चलिए एफटीआई में बहुत टफ कंपटीशन है, लिमिटेड सीट्स होते हैं जिसमें आपका सिलेक्शन नहीं होता है। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप विस्लिंग वुड में जा सकें, तो सबसे आसान तरीका है मेरे जैसे मैं छोटे छोटे शहरों में रहा हूँ। कलकत्ता में मेरा जन्म हुआ है रांची में, और जहाँ से अजय मलकानी सर है। तो मेरा रांची में जन्म होने के बाद फिर मैं रहा कलकत्ता में, पढ़ाई लिखाई मेरी कलकत्ता में होती रही। फिर उसके बाद मेरे पिताजी सीआईएसएफ में होने के कारण मैं चला गया भिलाई, छत्तीसगढ़। भिलाई में, फिर ग्वालियर में, फिर थोड़े समय पंजाब में रहा। तो अलग अलग जगहों में रहा। तो ये जो मैं और मेरी जो जर्नी शुरू हुई एक तरह से, वो ग्वालियर में हुई। ग्वालियर में मैं थिएटर से जुड़ा। हालांकि मुझे शुरू से फिल्म डायरेक्टर बनना था, लेकिन मेरे पास रास्ते नहीं थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना थिएटर ज्वाइन किया जाए। और मैंने थिएटर ज्वाइन किया, तो थिएटर से मुझे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स बने। मैं सीखा। बेसिक ट्रेनिंग तो आपकी थिएटर में ही होती है, जो आप, क्योंकि थिएटर में आप सब कुछ करते हैं। वहाँ पे आप, हो सकता है आपका छोटा प्रोडक्शन हो या वैसा हो, तो आप सेट लगाने से लेकर, मेकअप करने से लेकर, आपको हर काम करते हैं। तो आप, पता नहीं होता है कि आप, बहुत सारे थिएटर के लोग जानता हूँ जो शायद उन्होंने एक्टिंग बहुत अच्छे थे, लेकिन एक्टर थे, लेकिन वो बाद में कॉस्ट्यूम डिजाइनर बन गए, या वो बाद में आर्ट डायरेक्टर बन गए, या वो बाद में प्रोडक्शन करने लगे, या वो, मुझे शुरू से क्लियर था मुझे डायरेक्टर बनना था। हालांकि डायरेक्टर बनना मेरे लिए आसान नहीं था, क्योंकि मेरे लिए न्यूयॉर्क जाना या मेरे लिए कनाडा जाना ज़्यादा आसान था, क्योंकि मेरे बहुत सारे रिलेटिव वहाँ रहते थे। लेकिन मेरे लिए ये मुश्किल था, क्या कहते हैं, मुंबई आना, क्योंकि मुंबई में मेरा कोई नहीं था। तो मैं एनएसडी का, मेरी शुरुआत भी ऐसी एक वर्कशॉप से हुई थी। एनएसडी का वर्कशॉप हुआ था 1995 में ग्वालियर में। तब मैं 18-19 साल का था। और सतीश आनंद जी, शायद आप में से कुछ लोग जानते होंगे उनको, वो उसके कैंप डायरेक्टर थे। तो आज कल ही जो है 26 साल के बाद मुझे सतीश आनंद सर जो है फेसबुक पे मिले, और मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं बोला कि वो मेरे लिए, क्योंकि सबसे पहला जो है फॉर्मल ट्रेनिंग मैंने उनके वर्कशॉप में ली थी, तो मेरे लिए तो गुरु तुल्य है, वो गुरु ही है। तो मुझे वो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि वहाँ पर उन्होंने एक बात कही थी मुझे, जो आज तक मुझे याद है। मैं हर वर्कशॉप में कहता हूँ, फर्स्ट यू डिजर्व देन यू डिजायर। तो आप जो है, जो भी, आप कुछ भी बन सकते हैं। आपको अगर लगता है आप एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, बन सकते हैं, बट आपको डिजर्विंग बनना पड़ेगा उस फील्ड में, उसकी तरफ आपको काम करना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि मुझे डायरेक्टर बनना है, तो मैंने पहले थिएटर में काम करता रहा। फिर ग्वालियर में कला मंदिर और कला समूह करके, लिटिल बैले ट्रूप, आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा, अजय सर ने तो सुना ही होगा, कि पुराने जो एक समय का बहुत बड़ा बैले ग्रुप था। और वो भी आपके बहुत त्रिपुरा से ही उनका भी बैकग्राउंड था। स्वर्गीय पंडित शांतिवर्धन जी, उनका शुरू किया हुआ था। गुलवर्धन जी और अपना प्रभात दा, वो सब उस ग्रुप को चलाते थे, लिटिल बैले ट्रूप। बाद में जो है उसका ही एक दूसरा रूप, दो बंट गया वो। तो ग्वालियर में जो रहा वो कला समूह रहा, और बाकी जो दूसरा था ग्वालियर, भोपाल में, वो लिटिल बैले ट्रूप के नाम से जाना गया। तो मैं वहाँ पे रहा। वहाँ पर मैं काफ़ी, जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें, जैसे मणिपुर का मार्शल आर्ट थांग था, वो सीखा। अब मुंबई में जो है, जब आप आते हैं, तो मुंबई में ये चीज़ें लोगों को पता नहीं है। मुंबई इज़ अ मार्केट, मुंबई इज़ नॉट ए मैन्युफैक्चरिंग प्लेस। अगर बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं मुंबई में जाके सीखूंगा, मुंबई में जाके आप नहीं सीख सकते। आप सीख सकते हैं अगरतला में, सीख सकते हैं आप रांची में, सीख सकते हैं आप भोपाल में, सीख सकते हैं, है ना, आप जो है कोयम्बटूर में सीख सकते हैं। लेकिन आप अगर मुंबई में नहीं सीखेंगे, मुंबई में आप पॉलिश्ड हो सकते हैं, मुंबई में आप मार्केटिंग सीख सकते हैं, मुंबई में क्रिएटिविटी जो है, क्योंकि मुंबई की लाइफ इतनी टफ होती है,
तो वहाँ पर आप पैसा कमाने की सोचेंगे कि अपने आप सीखने की सोचेंगे? सीखने के लिए, कोई भी चीज़ के लिए आपको शांत माहौल और बाकी जो है आपके ऊपर स्ट्रेस और बर्डन कम होने चाहिए। तो आप लोग बहुत भाग्यवान हैं कि आप लोग अगरतला जैसी जगह में हैं। ये मत कभी मत सोचिएगा कि मैं छोटे जगह में हूँ, तो मैं, अगर आप देखेंगे जो भी जितने भी अच्छी हिंदी सिनेमा हो या नाटक भी हो, मैं आपको बताऊं, जैसे जो छोटे शहरों में जितने अच्छे नाटक होते हैं, मुंबई में उतने अच्छे नाटक नहीं हो पाते। होते हैं, कुछ होते हैं इंग्लिश थिएटर, कुछ अच्छे होते हैं, या कुछ एक प्रोडक्शंस होते हैं जिनके पास कहीं से वो फंड लाके करते हैं, लेकिन उस लेवल पे जो है वो हिंदी नाटक जो है नहीं हो पाता। या जैसे मराठी नाटक अच्छा होता है, क्योंकि मराठी नाटक अच्छा होता है, फिर क्योंकि मराठी नाटक केवल मुंबई में बेस्ट नहीं होता, मराठी नाटक चारों तरफ उनका कोल्हापुर, पुणे, उन जगह से उनके रेवेन्यू ज्यादा आते हैं। तो ये और उनके भी जो कलाकार होते हैं वो मोस्टली बाहर से करने बाद में आते हैं मुंबई में। तो ये आपके पास बहुत अच्छा अवसर है, आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि आप एक छोटे जगह में रह के और एक छोटे शहर में रह के आप उन चीज़ों पे पॉलिश कर सकते हैं। और पॉलिश क्या कैसे करना है, अभी तो हमारे पास बहुत सेल्फ ट्यूटोरियल जो है, आप यूट्यूब आ गया, इस तरह के वर्कशॉप्स होते हैं, इस तरह के सेमिनार्स होते हैं, अब तो ऑनलाइन चीज़ें होने लगी हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, लोगों के अनुभव सुनिए, तो उसमें से आप जैसे चाणक्य ने शायद कहा था कि अपने अनुभव से जो सीखता है वो बुद्धिमान होता है, जो दूसरे के अनुभव से सीखता है वो अति बुद्धिमान होता है। तो जिसने, जब आप किसी, जैसे मैं जब भी समय मिलता है, अजय मलकानी सर हो या इसी तरह जो है, उनको मेरे जो सीनियर है उनसे मैं सुनता हूँ, उन लोगों की बातें सुनता हूँ, क्योंकि वो हमारे जैसे लोगों के लिए ना बहुत सारी चीज़ें हमें पता होता है कि क्या नहीं करना है। तो ये इसका आप लोग फ़ायदा उठाइए ऐसे चीज़ों का। और बस, तो ये मेरी जर्नी थी। ये वहाँ से फिर मैं मुंबई आया। मुंबई आने के बाद मैं असिस्टेंट डायरेक्टर लगा। मुझे मालूम था डायरेक्टर मैं बन नहीं सकता सीधा, क्योंकि एक डायरेक्टर बनने के लिए कैसे कोई मुझे डायरेक्टर बनाएगा। तो मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बना। असिस्टेंट डायरेक्टर बनाया तो कोई बड़ा कैंप मुझे काम नहीं देगा। आप लोगों ने बहुत नेपोटिज्म शब्द सुना होगा पीछे, सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद। तो ये जो नेपोटिज्म है, ये नेपोटिज्म तो है, लेकिन ये एक तरह से ये स्वाभाविक है। कई मामले में मैं ये भी मानता हूँ कि अब हम रोक के तो कुछ नहीं कर सकते, हमें दरवाजा तोड़ के ही अंदर घुसना है। अगर आप लोगों ने गुरु फिल्म देखी हो, तो उसमें जो आपके लिए कोई कालीन बिछा के नहीं आने देगा, आपको कहीं ना कहीं दरवाजा अपने लिए रास्ते खुद बनाने होंगे। क्योंकि हमारे माता पिता ने वो संघर्ष नहीं किया है, तो वहाँ पे पैर रखने के लिए, तो वो संघर्ष भी हमें करना है। तो मैं मुंबई में आया, आने के बाद मुझे छोटी सी ग्रेड की फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर था। मुझे पहले कोई बड़ी फिल्म में नहीं, इसको मैं जानता ही नहीं था। वहाँ पे करते हुए फिर मैं एडवर्टाइजिंग में गया। एडवर्टाइजिंग में जब आप जाते हैं तो डेफिनेटली आप थोड़े से पॉलिश्ड हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको एक अच्छा क्राउड मिलता है, वहाँ पे पैसे होते हैं, वहाँ पे एक स्टाइल होता है। तो वो सारी चीज़ें भी, हमने ग्लैमर थोड़ा सा होता है, वो हमने एक दुनिया देखी। वहाँ से फिर मैं गदर फिल्म में अनिल शर्मा जी के साथ उनके उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर लगा। उन्होंने भी मुझे काम पे क्यों रखा था, अब मैं फिर बता रहा हूँ। जैसे बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, सर मैं मुंबई आ जाऊँ क्या, या मुंबई आके कुछ काम मिल जाएगा। जब आप मुंबई आए या ऐसे किसी जगह आने की सोच रहे हैं, तो आपके पास वहां पे आके बेचना क्या है, ये आपके पास तैयार होना चाहिए। मेरे साथ एक एडवांटेज ये था कि मुझे इतिहास की रुचि बहुत थी, और मुझे आज भी, मतलब जो मैंने नाटक भी लिखा है, जो एक ही नाटक लिखा है जीवन में। सीरियल तो 3000 एपिसोड से ज्यादा लिखे हैं, भारत में भी लिखा है, इंडोनेशियन शोज भी लिखे हैं बहुत सारे, वो भी इंडोनेशिया पे भी मेरे सीरियल्स काफी हिट थे, और कुछ फिल्में भी लिखी हैं। लेकिन जब वो जो नाटक एक ही लिखा, मोहनजोदड़ो, वो भी ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है। तो जब मैं अनिल जी के यहाँ पे गया असिस्ट करने के लिए, तो अनिल जी ने अनिल शर्मा जी सबसे, उनको जो है ना, जब उन्होंने कुछ 7-8 दिन की शूटिंग की हुई थी उससे पहले, और मैंने कुछ वहाँ पे बैठ के एल्बम देखे, और एल्बम में फोटोग्राफ्स थे। और जब उन्होंने मुझे, कई दिनों तक जाता था मैं वहाँ पे, कुछ 5-7 दिन तो जाता था, सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहता था। उनके पास इतने बिजी होते थे, मिलने का टाइम नहीं होता था। मैं रोज वापस आ जाता था, फिर मैं अगले दिन जाता था, सुबह 9 बजे जाकर बैठ जाता था, शाम के 7 बजे वो निकलते हुए, हाँ 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 मिलते हैं, कल आओ, कल मिलते हैं, कल जल्दी आ जाना। ऐसा करके जब वो 5-7 दिन के बाद मुझे मिलने का मौका मिला उनसे, तो उन्होंने सीधा कहा कि अरे आपने तो कोई बड़ी फिल्म नहीं की है, तो मैं आपको कैसे रख सकता हूँ, मैं तो, ये तो फिल्म बहुत बड़ी बजट की है।
और मेरे पास कोई ऐसा बैकग्राउंड भी नहीं था। एक होता ना कि जैसे मेरा कोई थिएटर ड्रामा स्कूल या एफटीआई ऐसा कोई बैकग्राउंड भी नहीं था, मतलब जिसको मैं इनकैश कर सकता था। तो मेरा जो थोड़ी इतिहास की रुचि थी, तो मैंने बैठ के थोड़ा सा, मुझे समझ में तो आ गया था ये पार्टीशन के ऊपर फिल्म है। तो मैं वहाँ पे बैठ के ना जो बात करते थे लोग, और नीचे असिस्टेंट बाकी जो थे, और कुछ उनके शूटिंग के फोटोग्राफ्स थे, उसके जो फोटो में देखा, तो मैंने क्या किया, उसमें ना कुछ 35 पॉइंट्स बनाए थे उसमें, जो फोटोग्राफ्स और उनकी बात सुनने के बाद मुझे उस फिल्म में क्या कमियां लगी मुझे। और फिर जब अनिल जी मुझे बोले कि आप ठीक है देखिए, आप कुछ होता है तो मैं आपको बताता हूँ, तो मैं समझा कि काम तो मिलेगा नहीं। तो जाते जाते मैं बोला अब काम नहीं मिल रहा तो चलो बोल ही दो। तो मैंने कहा सर आपकी फिल्म में ना बहुत सारी प्रॉब्लम है, मुझे देखते रहे थोड़ी देर। मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैंने फटाक से वो चीट निकाला और पढ़ के मैं उनको सुनाना शुरू किया, सर ये है ये है ये है, वो। हालांकि वो सबसे सहमत नहीं थे, लेकिन कुछ पॉइंट्स थे जिसपे उनको लगा कि यार ये लड़के ने इतने देर में ये, उन्होंने कहा देखो पैसे वैसे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, 3,000 रुपये महीना मिलेगा क्योंकि हमारा फिल्म ओवर बजट जा रहा है, और वो है। तो मैं बोला 3,000, ठीक है। 3,000 रुपये महीना जो है 1999 में, मतलब बहुत ज़्यादा तो तब भी नहीं थे, कम ही थे। लेकिन मुझे मालूम था कि ये मेरे लिए एक मौका है। वो एक मेरे जैसे आदमी के लिए जो आउटसाइडर है, और एक बड़ी फिल्म में अगर हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है। मैं उस फिल्म में जो है 3 साल तक वो फिल्म चलती रही, हमारी शूटिंग 3 साल होती रही। और 2001 जब फिल्म रिलीज हुई, तो भले वो तो खैर अल्टीमेटली तो डायरेक्टर की फिल्म होती है, स्टार्स की फिल्म होती है, लेकिन मेरे जैसे लोगों के लिए भी उसमें फ़ायदा होता है। जब आप एक हिट प्रोडक्ट के साथ जुड़ते हैं, तो मेरे लिए काफ़ी लोगों से जान पहचान हुई, आगे जो जानकारी मिली। और मतलब लोग मुझे, तो ऐसे मेरे एक दोस्त थे रविशंकर प्रसाद, वो बालाजी टेलीफिल्म्स में उस समय काम कर रहे थे। उस समय असिस्टेंट डायरेक्टर थे, वो छोड़ के वो बालाजी टेलीफिल्म्स ज्वाइन किया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आकाश यहाँ पे ना राइटरों की जरूरत है, क्योंकि उनको मैं उस समय मोहनजोदड़ो की कहानी सुनाई थी, तब नाटक मैंने लिखा बनाया नहीं था, कहानी सुनाई थी। तो वो बोले यार एक दो कहानी और सुनाई, तो उसको लगा यार ये लड़के में पोटेंशियल है। वो मेरे से सीनियर थे, ये दरभंगा के है। तो वो उन्होंने मुझे बुलाया, वहाँ पे मिलवाया बालाजी टेलीफिल्म्स में। कई बार मिलाया, एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ, फिर मेरा वहाँ पे पहला काम मिला एज ए कुसुम में, वन ऑफ द स्क्रीन प्ले राइटर। और फिर जब तक गदर हिट हो चुकी थी, और द हीरो में जो है जहाँ मुझे 3,000 मिलता था, वहाँ सडनली हमारी मेरी सैलरी हो गई थी 30,000 के आसपास कुछ मंथली। लेकिन मैं वो छोड़ के वापस बालाजी टेलीफिल्म्स में आया, जहाँ मुझे 18,000 रुपये भी नहीं होते थे शायद। लेकिन मैं बोला कि नहीं, क्योंकि अब मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं रहना है, मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। एक इंडिपेंडेंट जो होता है, एक राइटर इंडिपेंडेंट होता है। तो मैं पहले, मैंने जैसे कहा कि मैं हिंदी भाषी नहीं हूँ, मुझे हिंदी नहीं आती, हिंदी का व्याकरण नहीं आता है। तो मैंने कहा मैं स्क्रीन प्ले लिखूंगा। वहाँ पे मैंने स्क्रीन प्ले लिखना शुरू किया बालाजी टेलीफिल्म्स के साथ, स्क्रीन प्ले लिखना शुरू किया। तो उसके बाद जो है मेरे जो दोस्त है वो उस टीम में, वो दीप्ति भटनागर करके एक मॉडल एक्ट्रेस है, उनका एक प्रोडक्शन हाउस था, दीप्ति भटनागर प्रोडक्शन। और जिसमें यात्रा करके, कुछ लोगों ने शायद स्टार प्लस में देखा हो, यात्रा करके एक शो आता था। तो यात्रा के साथ उनका एक शो और आता था 2002-3 में, 3 के आसपास शायद, कभी आए ना जुदाई। तो उसमें जो है उन्होंने कहा कि स्क्रीन प्ले तो नहीं है यहाँ पे, स्क्रीन प्ले राइटर तो है, लेकिन डायलॉग राइटर, आप डायलॉग लिख लेंगे क्या? मुझे तो हिंदी में तब तक मैं इतना, मेरे अंदर विश्वास नहीं था कि मैं हिंदी लिख सकता हूँ, और वो भी डायलॉग। तो मैंने लेकिन हाँ तो कर दिया, मैं बोला हाँ मैं लिख लूँगा। अभी भी मैं हिंदी लिखता हूँ तो मेरी जो है सब वो मैं ही पढ़ सकता हूँ, दूसरा कोई मेरी लिखी हुई हिंदी, मतलब मेरा लिखा हुआ हिंदी पढ़ नहीं सकता। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं वहाँ पे जो है एज ए डायलॉग राइटर बालाजी टेलीविजन में, मतलब दीप्ति भटनागर प्रोडक्शन में, मैंने वहाँ से डायलॉग राइटर हुआ। जब डायलॉग राइटर हुआ तो फिर धीरे धीरे लोगों ने बोला यार इसको काफी, तो एक समय आया कि मैं स्टार प्लस उस समय सबसे नंबर 1 होता था, मैं चैनल के भी बहुत सारे लोगों का फेवरेट हुआ। उन्होंने बोलते थे भैया यही लिखेगा। उसके बाद लगभग जितने प्रोडक्शन हाउस थे उस समय बड़े, उस सबके साथ मैंने काम करता रहा। लेकिन क्या होता है, अगेन मैं बता रहा हूँ, क्रिएटिव लोगों की एक भूख होती है। आप लोग समझ सकते हैं कि ना, हमारे लिए पैसा तो ठीक है जरूरी है, लेकिन एक एक हम केवल पैसे के लिए क्रिएटिव आदमी नहीं जीता है। और क्रिएटिव आदमी के अंदर एक उसको अलग अलग चीजें करने की इच्छा होती है। जब मैंने लगा यही सास बहू लिख रहा हूँ यार, क्या है बकवास चीज, मैंने छोड़ दिया, मैंने लिखना। लोगों ने बोला मत छोड़ो, इतने पैसे कमा रहे हो, इतना अच्छा करियर जा रहा है। मैं बोला नहीं, मैं नहीं लिख सकता, और सास बहू रोज वही टाइप का चीज वही लिखूं। बोले लोग बोले नहीं आपका शो हिट है ना, टीआरपी आ रही है। बोला टीआरपी आ रही है, मुझे मजा नहीं आ रहा। मुझे किसी ने इंडोनेशिया में बुला लिया, बोला कि आप इंडोनेशिया में। मैं बोला यार बहुत बढ़िया,
इंडोनेशिया गया, मुझे लगा कुछ अलग काम करेंगे, लेकिन इंडोनेशिया में जब हमारे यहाँ सास बहू होती थी, इंडोनेशिया में उन दिनों एक परिया होती थी, हर घर में कोई प्रॉब्लम है तो एक परी आ जाती थी और वो परी आके वो प्रॉब्लम सॉल्व करती थी। क्योंकि वहाँ पे हमारे यहाँ एक सोनपरी करके शो हुआ करता था स्टार प्लस में। वो शो वहाँ पे बहुत, उसका हिंदी वहाँ पे इंडोनेशियन रिमेक बना था, वो बहुत हिट था, बिदादरी नाम से। तो वो हो गया, तो उसका फिर एक दूसरे राइवल प्रोडक्शन कंपनी ने उसका एक बावंग मेरा बावंग पुती करके बनाया। बावंग मेरा मतलब, मेरा होता मतलब लाल, और पुती होता होता सफेद। तो मेरा और पुती मतलब लाल और सफेद, और बावंग मतलब होता प्याज। तो लाल बवांग मेरा मतलब लाल प्याज, और बवांग पुती मतलब सफेद प्याज, मतलब लहसुन। लहसुन को वो लोग बवांग ही बोलते हैं। और जो हमारे यहाँ जो हम जो प्याज खाते हैं उसको वहाँ पर बवांग बॉम्बे बोलते हैं, जो बड़ा वाला प्याज होता है उसको, क्योंकि वो नासिक और इन क्षेत्रों से जाता है वहाँ पे, तो उसको वो लोग बवांग बॉम्बे बोलते हैं। तो इंडोनेशियन शोज भी करता रहा, वहाँ पर रहा। फिर वो एक समय होता है कि आप बोर हो जाते हैं। फिर मैं आया, फिर मैं बोला क्या करूँ, तो फिर मैंने अपना थिएटर ग्रुप शुरू किया मुंबई में, और बिग बैंग थिएटर्स के नाम से। और मेरा वो पहला नाटक था जो मैंने फिर, जो पहला स्टोरी तो बहुत पहले लिखी हुई थी, उसको जो है फिर मैंने उसको फिर और पॉलिश करते 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 वो नाटक बना। ये मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं ना, ये मेरे जन्मदिन पे जो है मेरे थिएटर ग्रुप के लोगों ने मुझे, ये जो है ये मेरे थिएटर ग्रुप के लोगों ने मुझे ये गिफ्ट किया, फ्रॉम द टीम मोहनजोदड़ो लिखा हुआ है पीछे। तो वो है थिएटर। डेफिनेटली मुझे एक, आज भी मैं थिएटर करता हूँ। इनफैक्ट मुझे अभी भी अभी लॉकडाउन की वजह से हमारे रिहर्सल रुके हुए हैं, लेकिन अब कुछ ऑनलाइन करूँगा शायद बहुत जल्दी। तो ये सब जब मैंने वो जब मोहनजोदड़ो हुआ, मोहनजोदड़ो से बहुत सारे टीवी के स्टार्स वो निकले, जैसे जोधा अकबर सीरियल की जोधा तो परिधि है, उसका पहला शो जो है वो मोहनजोदड़ो था, मतलब पहला उसने जो एक्टिंग की शुरुआत की मुंबई में। उसके बाद जो आपके आसाम की है देवलीना भट्टाचार्य, जो गोपी बहू है, उसने शुरुआत की उसी नाटक से, मोहनजोदड़ो में हमारे ग्रुप से। फिर उसके बाद एक अफसर बिटिया करके आता है, उसमें मिताली नाम वो काम कर रही थी, मिताली, फिर उसने यहाँ से की। फिर एक